with regards to jihad. तो जब हम जिहाद की बात करते हैं, so jihad happens to be actually पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर, पेपर 2 का सेक्शन 4। हम बात करें आर्टिकल्स ऑफ फेथ, पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड जिहाद की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई नीड टू, या दिस इज बेटर। सो हम जब बात कर रहे हैं जिहाद की, तो द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म जिहाद इज टू स्ट्राइव and to struggle. But as per the Islamic terminology, it means to strive and struggle in the way of Allah. In the way of Allah. When we talk about that striving and struggle in the way of Allah, this was also obligated in the year second AH. Second AH के अंदर इसको नाफिजुल अमल किया गया। और साथ साथ देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जिहाद। तो हम आज उन कैटेगरीज का एक्सपोजर लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कि जो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है, उस कैटेगरी का नाम है जिहाद बिन नफ्स। सो व्हाट इज जिहाद बिन नफ्स? मगर बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द 5 कैटेगरीज ऑफ जिहाद, how many of you would like to know what are the past paper questions that have appeared into the past papers with regards to jihad, ताकि आपको exactly पता हो कि हम किस frame of mind से इस topic को address कर रहे हैं। So how many of you are of the opinion कि first please past paper question, and how many of you are of the opinion कि पहले topic explain करें and then we can go back to what we are doing. So you have to vote this so that I know that you're there with me. So option number 1 is show, please demonstrate the past paper question first so that we are in a phase to understand. That is our target for today. And then, chalo, most of you are doing a thumbs up for that. So let's first try to start with that. हम खोलते हैं paper 2. Let's open paper 2. और इस paper 2 को खोलने के लिए हम चले जाते हैं जिहाद के क्वेश्चन पे। So let us go on to the question of जिहाद। So पहला क्वेश्चन हमारे पास जिहाद से रिलेटेड आया। Describe the meaning of the term jihad and say how Muslims can practice jihad in their daily lives. So let's talk about that. Describe the meaning of the term jihad and say how can Muslims practice jihad in their daily lives. Let's look at this question. तो ये क्वेश्चन आपको अपने पास सेव करके रखना होगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ये देखें, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द टर्म जिहाद एंड से हाउ मुस्लिम्स कैन प्रैक्टिस jihad in their daily lives. So this is a question that is appeared 2-3 times into the past papers. So I do hope that you will be able to take the screenshot of it. And ideally, if possible, you will take out a register, a single line register, in which you will be writing down the questions so that we can discuss them properly and you know what to solve and what to practice at home. So how many of you have gotten access to this question? Give me a thumbs up so that we can move on. समझ में आ गया? Okay, great. चलो, let's move on towards the part B. पार्ट बी के अंदर, अच्छा पार्ट बी हम बाद में देख लेंगे क्योंकि उसके लिए मैं वापस आऊंगा वरना आप कंफ्यूज जाएंगे। लेकिन जो अभी हम जिहाद का ऐसे डिस्कस करना चाह रहे हैं उसके लिए मैं ये 2 बड़े क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा हूँ। तो एक तो मैंने आपको हैंड आउट 2.4 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 4, पेपर 2 सेक्शन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 12 दिखाया, और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है, बेटा तुम यासिर साहब आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें कि यू हैव टू रीनेम योरसेल्फ। यानी एक बच्चा है जो नेट के नाम से आया, तो आई नीड टू नो whom I'm talking to, whom I'm teaching. Okay, so rename yourself with first name, last name. फिर बाकी इंस्ट्रक्शंस हम बाद में दे देंगे, इंस्टीट्यूट नेम वगैरह डालने की। ओके, सो हम बात कर रहे हैं राइट। अच्छा, दूसरा सवाल ये है हमारा कि राइट एन अकाउंट ऑफ अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज जिहाद थॉट टू बी कंपल्सरी and the Prophet's teachings regarding armed warfare jihad. So this is the question that we are addressing right now. और इससे पहले यानी right now से पहले we will be doing question number 12 that describe the meaning of the term jihad and say how jihad can be practiced in everyday lives.
ये 2 10 मार्क के क्वेश्चन है जिसकी बेसिस पे अब हम बोर्ड वर्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं. Are you ready? Can we start off with that? Okay. So let's move on towards jihad bin nafs. Let's talk about jihad bin nafs. So what is jihad bin nafs? Jihad bin nafs के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि it is to fight against your own evil inclinations. जब आप अपने evil inclinations के खिलाफ लड़ते हैं तो उसको बोला जाता है जिहाद बिन नफ्स. अपने अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट, अपने अंदर की गंदगी के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज जिहाद बिन नफ्स. जिहाद बिन नफ्स 2 बड़े दुश्मन है हमारे इस दुनिया में, उनसे हमें लड़ना होता है. एक कहलाता है शैतान, इब्लीस, लूसीफर, उसका भाई, उसकी बहन, जो हमारे दिल में शैतानी वसवसों को डाला करती हैं. सैटेनिक सजेशंस को पोर करा जाता है हमारे हार्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वसवास which was discussed in Surah Nas. तो अगर कोई बंदा ये क्लेम करे कि कभी भी उसको जिंदगी में कोई बैड थॉट नहीं आता, कोई इल थॉट नहीं आता, तो उसका मतलब वो ह्यूमन नहीं है, फिर वो एंजल है. तो बैड थॉट का आना तो नेचुरल है, बैड थॉट का आना तो, मगर उसको पोजीशन कैसे करना है, उसको सप्रेस कैसे करना है, उसको रिजेक्ट कैसे करना है, ये हमारे हाथ में है. तो हम अल्लाह ताला से पनाह तलब करते हैं और दीगर इकदाम उठाते हैं, दीगर एक्शंस लेते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नंबर 2, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नफ्स इन आवर लाइफ. एक हमारी एंजेलिक इंस्टिंक्ट होती है जिसे हम बोलते हैं नफ्स अम्मारा, which drives us to do good deeds. For example, अगर आप यहीं अपने घर से बाहर निकलें और आप किसी मिस्कीन को फटे पुराने कपड़ों में देखें and you see it's extremely cold and you give him 500 rupees or any currency so that आप उसको एक स्वेटर या जैकेट लेने के लिए एबल कर सकें, तो and then you feel positive about it that God has been so kind to you that you were able to help his creation and you feel positive about it, happy about it, satisfied about it. That is nafs ammara, the good nafs. And there is an animal instinct which is known as nafs lawwama, which drives you to do bad deeds. तो एक तो हमें अपने नफ्स लवामा को सप्रेस करना है, कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन करना है, और दूसरी तरफ हमने शैतान की डिजायर से भी बचना है. शैतान 2 तरीकों से इंसान पे हमलावर होता है. या तो वो बैड डिजायर्स को हमारे अंदर इतना चैनलाइज और एडिक्शंस का शिकार बनाता है दैट वी ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ बैड डीड्स बिकॉज ऑफ दैट. तो इसके खिलाफ लड़ने को, इसके खिलाफ कोशिश करने को, इसके खिलाफ जिद्दोजहद करने को, अगर आपको किसी बुरे काम में टेम्पररी लज्जत महसूस हो रही हो, सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, मगर उसके बावजूद आप मुश्किल वाला रास्ता इख्तियार करें और अल्लाह और उसके रसूल वाला रास्ता इख्तियार करें जो आपकी नफ्स पे गिरा गुजर रहा हो, बट यू डू दैट जिद्दोजहद, यू डू दैट एफर्ट, यू डू दैट कोशिश इन ऑर्डर टू गेट द प्लेजर ऑफ अल्लाह, दैट इज नोन एज जिहाद बिन नफ्स फॉर यू. अब इसकी कुछ मिसालें लेते हैं. ओके, सो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जिहाद बिन नफ्स. It is to fight against your own evil inclinations. It is to fight against your own evil inclinations. Now, what are those evil inclinations? Let's talk about that. Number 1, evil inclinations क्या क्या होंगी? Number 1, इसकी examples लेते हैं. E.g., for example, lowering your gaze. You're walking into a mall and you see someone with provocative clothes, with less clothes, and then you want to temporarily glance at that person in order to feel temporary pleasured, but you force yourself, आप कोशिश करें और कुरान की आयत पे अमल करने की कोशिश करें कि say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty, that is the best, and say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty. So ये हो गया पहली example of jihad bin nafs, that your mind and heart was telling you to do something else, but then you resisted your temptation and then you decided to do what was right by being respectful and decent and lowering your gaze. So that is jihad bin nafs for you. Number 2, you were seeing a fantastic football match and between 2 famous teams, maybe Manchester United and Arsenal, और उस नतीजे के अंदर आप अपनी फेवरेट टीम के साथ इन्वेस्टेड हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है वो मैच देखने में,
मगर असर की अजान का वक्त हो जाता है और अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप पॉपकॉर्न खाते हुए मैच को देखते रहें, और दूसरा ऑप्शन है कि आप जिद्दोजहद करें, कोशिश करें, और जिद्दोजहद और कोशिश करने के नतीजे में खड़े हों, अपने कम्युनिटी सेंटर जाएं, अपनी मस्जिद जाएं, वह नमाज पढ़ें और वापस आएं, और उसमें आप 15 मिनट लगाएं। तो ये जो 15 मिनट की मुशक्कत आपने अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में की है, दैट इज जिहाद बिन नफ्स फॉर यू। तो ये मुख्तलिफ आप ये कोई भी काम आप कर रहे हैं, रात में सो रहे हैं, उठते हैं, खड़े होके पानी पीने और लिड खोल के बॉटल को पीने की जगह अगर आप पानी का बॉटल ग्लास पानी की बॉटल में से ग्लास में उसको पोर करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बैठ के 3 सांस में पीते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और उसको देख के पीते हैं, तो और सारी इस नियतों से कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अमल पैरा होने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू फॉलो इट। तो ये जो आप एक्स्ट्रा एक्सर्शन कर रहे हैं कि जब आप खड़े होके एक लिड खोल के कैमल की तरह बॉटल में से पानी पी लेते तो उसमें आपको 7 सेकंड लगते, मगर अगर आपने ये बैठ बैठ के पानी पिया और 3 सांस में पिया तो आपको 25 सेकंड लगे। तो अगेन दैट इज जिहाद बिन नफ्स। तो ये हो गया हमारा कि एक गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है, एक सुन्नत वाला रास्ता है, एक गैर सुन्नत वाला रास्ता है। तो अगर आप अपनी एफर्ट को लगाकर सुन्नत वाले रास्ते को फॉलो करेंगे डिस्पाइट टेम्पररी मुशक्कत, दैट इज जिहाद बिन नफ्स। इसी तरीके से कभी कभार जिहाद जो होता है ना, वो शैतान हमें दो तरीकों से बहकाता है। या तो हमें डिजायर्स का एडिक्ट करता है, हम किसी ना किसी डिजायर के अंदर बार बार कुछ गुनाह कर रहे होते हैं, या फिर वो क्या करता है, दूसरा तरीका होता है हमारे दिमाग में डाउट डाल देता है। डाउट कैसे डालता है कि जब हम कुरान और हदीस के ग्राउंडेड रूट बेस्ड ऑथेंटिक इल्म से कनेक्टेड नहीं होते, तो उस नतीजे के अंदर, यस स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, सेट है, ओके। तो अगर हम ग्राउंडेड कुरान और हदीस का इल्म हासिल नहीं करते, ऑथेंटिक स्कॉलर से अपने आप को कनेक्टेड नहीं रखते, तो ओवर टाइम होता यह है कि हमारी जहालत का लेवल, जहालत में आई डोंट से इट इन अ डेरोगेटरी वे, या हमारी ला इल्मी का वो लेवल हो जाता है कि उस ला इल्मी के नतीजे में मीडिया जो है आजकल एक बहुत बड़ा टूल है। आई थिंक नेल्सन मंडेला साहब का कॉल था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल with which you can attempt to change the world, with which you can use to change the world। अब मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैं इतना बड़ा कोई वो नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज, मगर एज पर माय एक्सपोजर I realize that media has surpassed the role of education as the most powerful tool to change the world. Because even if you're not consuming any bad content on the internet, yet in the form of reels, yet in the form of stories, yet in the form of unnecessary scrolling, something or the other is being fed into my mind and your media that we consume। तो उस नतीजे के अंदर शैतान हमें कोई ना कोई ऐसी चीज शक में मुब्तला करता है जिसकी बेसिस पे फिर हम रिलीजन को क्वेश्चन करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल क्या हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, जी जी, अम्मी मेरी 8:30 से 9:30 की क्लास है, तो मैं उसके बाद आपसे बात करता हूँ, ठीक है, ओके ओके। हम बात कर रहे थे कि प्रेइंग ऑन टाइम, अच्छा हम बात कर रहे थे कि शक में मुब्तला करता है। जैसे आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि जितनी भी इंग्लिश सीरीज हैं, मूवीज हैं, उर्दू मूवीज हैं, उनमें वल्गैरिटी का लेवल तो ऐसे ऐसे ड्रास्टिकली गिरता जा रहा है, कुछ लोग अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सेट्रा एंड व्हाट नॉट। मगर किसी न किसी तरीके से शैतान हमारे दिमाग में डिसेंसिटाइज करना चाह रहा है इस मॉडर्न वेपन थ्रू दिस मीडिया, कि जैसे हमारे अंदर सेम जेंडर रिलेशनशिप्स को लेके कुछ एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि लेट्स गिव लव अ चांस एंड एक्सेट्रा। हालांकि कुरान का वाज़ेह पैगाम मौजूद है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम सेम जेंडर रिलेशनशिप्स में पड़ गई थी, मीनिंग द बॉयज यूज्ड टू गेट अलोंग विद द बॉयज इन टर्म्स ऑफ मैरिज एंड द गर्ल्स यूज्ड टू गेट along with girls in terms of marriage। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम, लूत ने उनको अलैहिस्सलाम ने उनको दावत देने की कोशिश करी कि अल्लाह ताला ने एडम एंड ईव को बनाया था, एडम एंड स्टीव को नहीं बनाया था, एंड इट इज अगेंस्ट नेचर एंड देन यू शुड नॉट फॉलो योर लस्ट एंड डिजायर टू द एक्सटेंट दैट यू अर्न द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह। मगर वो माने नहीं और बिलाखिर उनको शदीद तौर पे सजा दी गई।
तो अब अगर हर सीरीज के अंदर आज से 4-5 साल पहले तक ये इतना कॉमन नहीं था, इसको एक टैबू सब्जेक्ट के तौर पे पिछले 5,000-10,000 साल से देखा जा रहा था, मगर अब पता नहीं क्या हो गया है कि अचानक से हर सीरीज के अंदर कोई एक कैरेक्टर होगा जिसका सेम जेंडर होना जरूरी है, सेम जेंडर इंक्लिनेशन होना जरूरी है, और उसको बहुत ही ज्यादा एम्पैथेटिक और केयरिंग इंडिविजुअल दिखाया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में सेम जेंडर रिलेशनशिप्स की एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप की जाए। अब अगर आपके दिमाग में ये डाउट डाल दिया गया कि यार इतना केयरिंग है, और अगर तो क्या हुआ कि वो पर्सनली इस अमल में इन्वॉल्व होता है, हम उसको जज ना करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसकी इस्लामी माशरे में इजाजत नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट हिम, क्या कहते हैं, तो उस नतीजे के अंदर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसी भी ऐसे अमल की तायीद ना करें, उसके लिए अपने दिमाग में एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट ना करें, एंड सो ऑन। बहरहाल चलो, हम बात कर रहे थे फाइटिंग अगेंस्ट योर ओन इविल इंक्लिनेशंस, और उसमें हमने जिहाद बिन नफ्स की बात कर ली। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड कैटेगरी, एंड दैट इज नोन एज जिहाद बिल लिसान। सो व्हाट इज नोन एज जिहाद बिल लिसान? जिहाद बिल लिसान को हम अरबिक में लिसान कहा जाता है, और वैसे कहा जाएगा टंग, और इस टंग के साथ साथ इसको कुछ लोग बोलते हैं जिहाद बिल कलम, एंड दिस जिहाद बिल कलम इज ऑल्सो नोन एज जिहाद ऑफ द पेन। ओके, अब ये दोनों जो हैं, अगर मिसाल के तौर पर मैं ऑडियो लेक्चर्स के जरिए इस्लाम का पैगाम फैला रहा हूँ, ऑडियो लेक्चर्स के जरिए, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस के जरिए, वन ऑन वन कॉन्वर्स वन ऑन वन की स्पेलिंग गलत हो गई भाई, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस के जरिए अगर मैं ये पैगाम फैला रहा हूँ, एंड वीडियो लेक्चर्स एंड व्हाट नॉट एंड रील्स एक्सेट्रा, तो ये सब क्या कहलाएगा? जिहाद बाय द टंग। लेकिन अगर काम मैं कर रहा हूँ आर्टिकल्स के जरिए, ब्लॉग्स के जरिए, बुक्स के जरिए, लेटर्स के जरिए, ईमेल्स के जरिए, तो ये जिहाद बिल कलम कहलाएगा। मगर इस्लाम का पैगाम फैलाने के लिए इस जिहाद बिल लसान के लिए कौन से मकासद इस्तेमाल हो सकते हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट दोज मकासद। तो मेरे पास 4-5 ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए जहन में हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। नंबर 1, अगर हम बात करें टू इनवाइट नॉन मुस्लिम्स टू इस्लाम, तो हम जब बात करेंगे टू प्रोवाइड नॉन मुस्लिम्स टू इस्लाम, तो उस नतीजे के अंदर आपको जो इस्लामिक मिशनरीज काम कर रही होती हैं कि आप all to the way of thy Lord, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103, to wisdom and beautiful preaching, and argue with them and reason with them with the ways that are best and most gracious। तो आप उसको साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स दें, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स दें, साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दें, हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट्स दें, और जितने भी आप उसको विजडम के साथ आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, in order to have a healthy discussion that why Islam is the only faith which is logical and that it should be accepted as a way of life in order for the person to get into Jannah। तो ये सारी बातें अगर आप उससे कर रहे हैं, तो हासिल करने के नतीजे में जो दावा ऑर्गेनाइजेशन और द वर्ल्ड काम कर रही होती हैं, तो दैट इज एक्चुअली जिहाद बिल लिसान। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टू इनवाइट मुस्लिम्स टू बिकम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, टू इनवाइट मुस्लिम्स टू बिकम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। तो मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई दोस्त है जो ड्रग्स के अंदर पड़ गया है, सिगरेट स्मोकिंग में इन्वॉल्व है, तो अगर मैं उसको तरकीब दूंगा कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स एक्सेट्रा, तो इस टीनेज की उम्र पे उस पर 10-20% इम्पैक्ट आएगा। मगर अगर आप उसके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, आप उसको समझाएं, आपका क्लास 1 का दोस्त है, ही इज विद यू सिंस grade 1 एंड नाउ यू आर इन grade 10, तो आप उसके गले पे हाथ रख के उसको समझाएं कि याद कर कि वंस यू आर नॉट इनटू दिस हैबिट ऑफ ड्रग अब्यूज एक्सेट्रा, तो उस नतीजे के अंदर you used to perform so well in academics as well as sports कि तुमने वो फुटबॉल का 4 गोल स्कोर किए थे and you were the man of the match despite being in grade 8, but since you started this light form of drugs etc in grade 9 and 10, तब 10 में जब ट्रायल्स हुए इंटर स्कूल टीम के लिए, तो उसमें grade 9 वाला बच्चा आपसे बॉल को टैकल करके ले गया because you know
क्या कह रहा था मैं? हाँ, because you were short on stamina and you could not perform that well. So it is not that these drugs, you are not consuming it. The drugs are consuming you, and they will finish you rather than you finishing them. उस नतीजे के अंदर अगर आप प्यार मोहब्बत से उसको बैड हैबिट से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे, या फिर आप उसको गाली से रोकने में हेल्प करेंगे कि यू डोंट हैव टू यूज foul language in order to look cool, or in order to take out your frustration. There are more mature ways of handling your stress or anger. या फिर अगर नमाज का वक्त हो तो सब मिलके नमाज के लिए जा रहे हो, and you're having a lunch or you're playing together, so you can offer the prayers together, तो एक बंदा चार लोगों को रिमाइंडर दे दे। तो ये सब आपका jihad bil lisan में, to invite and others Muslims to become practicing Muslims. Number 3, to remove propaganda against Islam, to remove propaganda against इस्लाम। तो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा को रिमूव करने में आप जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा आप रिमूव करेंगे अगेंस्ट इस्लाम, जैसे कि मीडिया के अंदर जबरदस्ती ये दिखाया जा रहा है कि द मुस्लिम्स आर सपोज every Muslim is not a terrorist, but every terrorist has to be a Muslim. So this is such a flawed argument जिसकी कोई statistical और historical basis नहीं है। तो आप being a person of media, you can counter that narrative by telling के World War I, World War II, majority of the attacks, there are black sheeps in every community, but why is there कि पूरे 9/11 के बाद से 2001 में जब ट्विन टावर पे अमेरिका के प्लेन्स आके लगे थे हाईजैक होकर, तो उसके बाद से एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई जिसके तहत इस्लामोफोबिया 20 साल में इतना फैल गया। Why is there no Hindu phobia? Why is there no Christian phobia? Why is there no other Buddhist phobia? Because the media has been channelized into a certain way to make people throughout the world believe in a way which is actually not a reality. तो अगर आप उसके अंदर अपना किरदार अदा करेंगे to improve the message of Islam, the branding of Islam based on facts, based on haqaiq, rather than just perceptions and तो उसके बेसिस पे that will also be jihad bil lisan. फिर आप बता सकते हैं नंबर 4, to speak truth, to speak truth against an oppressive ruler. तो to speak truth against oppressive ruler का मतलब क्या है? एक जालिम, to speak truth against oppressive, एक जालिम हुक्मरान के हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत ना हो, और उसके सामने आप सच और हक बयान करें, चाहे उसके बाद वो आपको पुट बिहाइंड बार्स कर दे, जाली केसेस बनवा दे, जेल में डाल दे, मगर यू बिलीव व्हाट इज राइट, और उसके बेसिस पे आप अपने प्रिंसिपल्स को स्टिक करके रखें। सो दैट इज जिहाद बिल लिसान फॉर यू। And the last one that we can talk about is that ये सारी बातें हो गई social evils, to talk about, talk to talk, talk right about social evils. What are the social evils? For example, अगर आपके माशरे में child abuse पाया जाता है, या आपके माशरे में ब्राइबरी पाई जाती है, या आपके माशरे में डोमेस्टिक वायलेंस पाया जाता है, तो आप इसकी खिलाफ चेंज एजेंट्स बनकर डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं। और यस, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ऑप्रेसिव रूलर, जालिम हुक्मरान ऑफ दैट टाइम के खिलाफ जो कलमा हक बुलंद किया और सबमिट नहीं किया, so that will also be an example of the mental jihad as well as physical jihad. It will overlap. Okay, we will talk about physical jihad in a bit. Bharal, so to talk and write about socially evils like child abuse, bribery, and domestic violence, that can also be jihad bil lisan / kalam. So this was the two categories of jihad that we have discussed up till now. The first one was jihad bin nafs, fighting against your own evil inclinations, and the second one was jihad bil lisan और कलम, जिसके मैंने आपको 5 एग्जांपल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी दे दिए।
Let's move on towards the third category. And the third category talks about, this is one of the most basic ones, and that is known as jihad bil mal. So what is jihad bil mal? Jihad bil mal is actually jihad of the money. So if you do anything to earn the pleasure of Allah, to help the society, for example, helping poor, orphan, widows, people of political disturbances, by the people of Gaza, Kashmir, Palestine, and wherever any person is being oppressed around the world, and they require rehabilitation, they require medicines, they require food, etc. तो ये सब जो है वो क्या कहलाएगा जिहाद बिल माल. और दूसरा इस्लाम में एनजीओस को भी आप वगैरह दे सकते हैं इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर और द डेस्टिट्यूट पीपल ऑफ सोसाइटी. और फिर इस्लामिक सोल्जर्स को भी आप जो है वो रकम फराम कर सकते हैं अगर वो रेजिस्टेंस फाइटर्स जो हैं वो रेजिस्टेंस फाइटर्स एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं. मगर यू हैव टू बी श्योर कि वो जो है वो एक राइट पर्पस के लिए काम कर रहे हैं और वो ऑफिशियल चैनल्स हैं और वो गवर्नमेंट से बैक्ड है. और मतलब फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आप अगर इसकी इस्लामिक मिसाल लें तो हजरत अबू बकर डोनेटेड ऑल हिज वेल्थ इन तबूक एक्सपीडिशन. तो खुदा ना खास्ता वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ वॉर. मगर अगर पाकिस्तान और इंडिया की फुल स्केल वॉर हो जाए और उस फुल स्केल वॉर के नतीजे में we know for a fact that we are 24.5 crore की population around, they are 125 crore. तो उनका जो डिफेंस बजट है, उनका जो इकोनॉमी साइज है, एंड उस नतीजे के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, उस नतीजे के अंदर हम क्या कह रहे थे, हाँ. तो अगर हमारे सारी रिसोर्सेज यूज हो जाएंगी तो सारी रिसोर्सेज यूज होने के नतीजे में अब अगर हमें किसी और मुल्क से वेपन्स को अरेंज करना है एंड वी आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, तो अगर द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल donate to the Pakistan Army in such a crucial stage where we need to protect our land or protect its people against oppression, so that will be counted as jihad bil mal. So मगर अगर हम नेशन स्टेट वाइज किसी और से लड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज हैविंग अ क्लैश विद अफगानिस्तान और विद Iran or with Bangladesh, the immediate Muslim nations that are in the neighborhood. So उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा सही कौन है और गलत है कौन है, उसमें पैसा डोनेट करना बहरहाल जिहाद बिल माल नहीं कराएगा, क्योंकि जिहाद बिल माल is considered as jihad bil mal when it is fought against the non-Muslims, and number two, for the right reasons of removing injustice and oppression and zulm from the land or from the people who are being suffered. तो ये हो गया हमारे पास जिहाद बिल माल. इसके बाद फिर हम चौथी कैटेगरी पे चले जाते हैं. तो ये चौथी कैटेगरी का मतलब क्या होता है, चौथी कैटेगरी को हम देख लेते हैं. और वो चौथी कैटेगरी कहलाती है जिहाद बाय द हैंड. जिहाद बाय द हैंड, जिहाद बाय द हैंड को हम यद बोलते हैं, जिहाद बिल यद. सो इसके अच्छा जिहाद बिल माल के लिए अगर आपको रेफरेंस कोट करना हो, जो बाकी नोट्स वगैरह भी मिलेगा, तो हदीस नंबर 7 में आता है, who is the most excellent of men. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the believer who strives hard in the way of Allah with his person and his property, that will be called as the best Muslim. इसी तरीके से जिहाद बिल यद या जिहाद ऑफ द हैंड के लिए मेरे दिमाग में हदीस नंबर 6 आ रही है, और वो हदीस नंबर 6 ये कहती है कि whoever of you sees an evil action, let him stop with his hand. If he is unable to do so, let him stop with his tongue. If he is unable to do so, let him stop in his heart. And that is the lowest level of faith. तो अब आप बात करेंगे किस चीज की, अब आप बात करेंगे हाथ से बुराई को रोकने की. मगर उसके अंदर आपको ये देखना होगा कि आपके पास कितनी कैपेसिटी और कितनी अथॉरिटी है in order to stop it. Okay, so for example, इसकी एक एग्जांपल ले लो, e.g. for example, there is a street hooligan, a loafer,
which is trying to tease a girl on the road, trying to tease someone on the road, someone on the street. What should be your first reaction? Number one, आप उसको अपने हाथ से जाके अलग करेंगे और बोलेंगे भाई आपके घर में बाप भाई नहीं है। मगर क्योंकि आजकल फेमिनिज्म का जमाना है, अगर 4-5 लड़कियां मिलकर एक लड़के को ओवर पावर कर रही हूँ तो फिर आप जाके उनको अलग करेंगे और कहेंगे हाथ से कि क्या आपके घर में बाप भाई नहीं है। चलें, ये तो एक जोक था। मगर तो असल में फिजिकल क्लास होती है ना, तो मेरे एक्सप्रेशंस बहुत वो होते हैं, क्योंकि आई गेट द फीडबैक ऑफ माई स्टूडेंट्स ना, तो उससे मेरी एनर्जी थोड़ी मजबूत हो जाती है। अभी मैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्योंकि बाद में मैंने ये लेक्चर शायद यूट्यूब पे डालने का सोचना है या नहीं सोचना, बट इट इज़ वेरी अननेचुरल ऑफ मी नॉट टू मेक एनी कॉमेंट्स और यू नो बहरहाल चलो ऐसे ऐसे फॉर्म में आते हैं। तो ज्यादातर 10 में से 8 दफा इट इज द बॉयज हु आर एट फॉल्ट रादर देन द गर्ल्स, मगर ये आखिर आखिर जमाना है तो आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर बहरहाल, तो अगर आप देखें कि एक जो लड़का है वो अपनी हुदूद से तजावुज कर रहा है, तो आप उसको हाथ से आके रोकेंगे भाई क्या कर रहे हो? बिकॉज अ मुस्लिम इज सपोज टू बी एन एक्टिव चेंज मेकर ऑफ सोसाइटी, एन एक्टिव सिटीजन ऑफ सोसाइटी। ही कांट बी एन एब्सेंट फिगर, ही कांट बी समबडी हु लिव्स इनटू हिज ओन शेल, ही कांट बी सेल्फिश कि जब तक मेरे घर वालों पे अटैक नहीं हो रहा तब तक मैं सामने कुछ नहीं करूंगा। मगर अगर आप देखें कि वो जो बंदा सामने तंग कर रहा है, वो बंदा जो सामने तंग कर रहा है, उसके नतीजे में, उसके तंग करने के नतीजे में अ, जो बंदा एक्चुअली एग्रेसर है या विक्टिमाइजर है, वो जो है उसके पीछे एक वीगो खड़ी है जिसमें 4 आर्म्ड गार्ड्स हैं। तो अब वो जो 4 आर्म्ड गार्ड्स हैं, अगर हम उनको टच करने जाएंगे उसको, तो वो बंदे हमें बंदूक से उड़ा देंगे और हम लेट फाजिल मनिया कहलाने लगेंगे। तो अब हमारी कैपेसिटी से ये चीज़ बाहर हो गई। तो उस नतीजे के अंदर, उस कैपेसिटी के नतीजे में अब हमें फौरन 15 फोन करना पड़ेगा, जबान से रोकना पड़ेगा, और पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इनकॉपरेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आप जो है वो जल्दी से आके इसको रेस्क्यू करें। या फिर हमें फेसबुक लाइव या इंस्टाग्राम लाइव बनाना लगना पड़ेगा वीडियो से, देखो भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ताकि उस पर प्रेशर पड़े। तो जबान से हाथ रोकें, और जबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जाने कि काश मेरे अंदर इतनी बुज़दिली नहीं होती और मैं सोसाइटी में, मुआशरे में क्राइम को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करता। दूसरा, तो ये तो हो गया कैपेसिटी वाला केस, ठीक है। दूसरा, अथॉरिटी भी होना जरूरी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई बंदा जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, करप्शन में इन्वॉल्व है। अब मैं अगर नैब बन जाऊंगा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, या मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बन जाऊंगा और हर बंदा अपने घर से डंडा लेके निकल आएगा कि बंद करो बंद करो बंद करो, तो ये मॉब वायलेंस के नतीजे में अनारकी फैल जाएगी, अनारकी और केओस और डिसऑर्डर फैल जाएगा। तो इस वजह से जरूरत इस बात की है कि मैं रेलिवेंट अथॉरिटीज के तहत आई शुड हैव, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट एवर हैपेंड इन गाजा, so I do not have that access to go directly to Gaza, but all the chief of the army staffs of the Islamic nations and all the prime ministers of the Islamic nations will have to be answerable before God कि आपने ह्यूमनिस्टिक रीजंस की वजह से सीज फायर लगाने में 15 मंथ्स क्यों लगा दिए, जब वहां पर कारपेट बॉम्बिंग हो रही थी। तो उस कारपेट बॉम्बिंग को और पूरे स्टेट्स, हॉस्पिटल्स, चिल्ड्रन एंड व्हाट नॉट, तो सारे सिविलियंस को मरने क्यों दिया? Why didn't you use your influence, your resources, your money, your diplomacy, your um, ambassadors in order to stop that war immediately? तो अगर आपने ये काम नहीं किया तो अथॉरिटी होना भी जरूरी है। जब आप बुराई को हाथ से रोकोगे तो नंबर 1 कैपेसिटी भी हो, नंबर 2 अथॉरिटी भी हो, तो फिर ये करामत साबित होगा। एंड एवरीबडी विल बी आस्क्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट रिगार्डिंग द कैपेसिटी दे हैड एंड द अथॉरिटी दे हैड टू स्टॉप ईवल। आखिरी कैटेगरी कहलाती है जिहाद बिस्सैफ। इसके ऊपर हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज नोन एज जिहाद बिस्सैफ। जिहाद बिस्सैफ मींस jihad of the sword, and it is also known as military jihad. It is also known as military. So what is military jihad? Let's talk about that. So any war
fought by any Muslim, whether it be for personal gains, whether it be for uh, whether it be for extracting revenge, कि इसने मेरे भाई को मारा है तो मैं इसके पूरे कबीले का सफाया कर दूंगा. तो any war fought by any Muslim is not jihad. Jihad is only done, physical jihad, military jihad की बात कर रहा हूँ. It must be used as the last final resort, final option. Well, all other options have been used. It is only done to remove injustice from the land, to take out people, to remove oppressors from the land who are oppressing innocent people. अल्लाह के दीन को अल्लाह की ज़मीन पे नाफिज करने के लिए और माशरे से जुल्म और नाइंसाफ़ी मिटाने के लिए ही जिहाद होता है. अपने इंडिविजुअल मकासद को हासिल करने के लिए जिहाद नहीं होता. अगर सिविल वॉर मुस्लिम्स के दरमियान होती है उसको हम जिहाद का नाम नहीं देंगे, मगर उसमें ये ज़रूर साबित होगा कि जो बंदा हक पे था, सच पे था, और जो बंदा हक पे नहीं था और वो जुल्म कर रहा था, तो जो बंदा जुल्म कर रहा होगा उसको तो जाहिर सी बात है क़यामत के दिन हिसाब किताब देना पड़ेगा. तो उस नतीजे के अंदर अब जिहाद बिल स्वॉर्ड कब वैलिड होता है, उसके लिए आई थिंक देयर आर सम पीपल हु जॉइंड इन लेट. तो मैं ये वाला क्वेश्चन दिखा दूं. आपको एवरीडे लाइफ वाला जिहाद का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपने क्या क्या चीजें लिखनी होंगी? ठीक है, मैं इसको अब प्रेजेंटेशन उसकी नोट्स की शक्ल में दिखाता हूँ और फिर हम चलते हैं जिहाद, मिलिट्री जिहाद के ऊपर. ओके, तो हम मिलिट्री जिहाद के बारे में हम क्या जानते हैं? पेपर नंबर 2 हमने निकाला और पेपर नंबर 2 निकालने के नतीजे में हम बात कर रहे हैं something has happened. एक सेकंड रुकिए. Why is broadcasting not happening? Where is my meet? मेरी आवाज आ रही है आपको? वो iPad का इंटरनेट कनेक्शन इज एन इशू. Just give me a minute, okay? Okay. हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13. के this question number 13 says, write about the Prophet's teachings regarding armed warfare, jihad, and under what circumstances will jihad thought to be compulsory. तो हम इस हवाले से आपसे डिस्कशन कर लेते हैं कि जिहाद के बारे में हम क्या जानते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्म्ड फाइटिंग, दैट इज जिहाद बिस्सैफ. देन इस्लाम, आर्म जिहाद बिस्सैफ. चाहिए मैं क्या आपको रीड क्यों करवा रहा हूँ? मैं से आपको सवाल दिखाना चाह रहा था. ओके, तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नाउ. तो उस क्वेश्चन के बारे में हम ये कह रहे थे कि write about the Muslims' teachings regarding armed warfare jihad and under what circumstances it jihad thought to be compulsory. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक कंटेंशियस इशू रहा है फॉर द लास्ट 75 years एंड दैट इज द इशू ऑफ कश्मीर. तो अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई भी मसला है कश्मीर इशू, तो यू डोंट स्टार्ट फाइटिंग एज द फर्स्ट ऑप्शन.
It is used as fighting is used as a last option. Jihad by the sword, military jihad, jihad of the self is used as a last option when all other options have been used. For example, कि अगर आपके पास एक बंदा है, कश्मीर वाला इशू है, तो पहले हमारे दरमियान बायलैटरल नेगोशिएशंस होनी चाहिए. A team from India arrives, a team from Pakistan arrives, 5 people maybe on both sides, let's say a number, and then they discuss the issue. एक बात आपकी सही, एक बात हमारी सही, चलें कंसेंसस करते हैं. कंसेंसस करने के मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो दोनों पार्टीज के लिए काबिल कबूल हो और एक विन विन सिचुएशन निकाल लेते हैं. मगर ऐसा हुआ कि किसी एक साइड ने मना कर दिया कि भाई नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी विल डू व्हाटएवर वी लाइक, तो फिर हम दूसरा ऑप्शन हो सकता है बाय थर्ड पार्टी मीडिएशन. यानी एक बड़ा भैया आ जाए, फॉर एग्जांपल अमेरिका और चाइना, जो दोनों के नजदीक एक न्यूट्रल बॉडी हो, जो दोनों से दोस्ती रखता हो और लोगों को यकीन हो कि वो बायस फैसला नहीं करेगा. तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो फर्स्ट टेन्योर था, क्योंकि कल आई थिंक उसका दूसरा टेन्योर शुरू हो जाएगा, तो उस नतीजे के अंदर उसने मीडिएट करने का 2019 में कहा था टू पाकिस्तान एंड इंडिया कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सालिसी का किरदार अदा करूँ, एज थर्ड पार्टी मीडिएट करूँ आपके मसले को, तो आई एम विलिंग टू डू सो. मगर इंडिया ने मना कर दिया दैट वी डोंट रिक्वायर दैट. तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप यूनाइटेड नेशंस चले जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं. जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका केस लेके गया बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट between Israel and Palestine, and it was ICJ, the International Court of Justice, which gave a ruling that Israel has gone beyond every ethical boundary in this world and has done a televised genocide. उन्होंने genocide का नाम नहीं दिया, but उनको in fact I think वो प्राइम मिनिस्टर के एग्रेसर के प्राइम मिनिस्टर के वारंटी गिरफ्तारी भी जारी हुई, दैट दे शुड बी अरेस्टेड फॉर व्हाट दे हैव डन. तो अब उस नतीजे के अंदर भाई नहीं माना एग्रेसर ने, हम नहीं मानते इस चीज को, वी डोंट एग्री विद दिस फिलॉसफी, वी डोंट एग्री विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बायस्ड फैसला ये है वो है. तो उस नतीजे के अंदर आपको चौथे स्टेप की तरफ जाना पड़ेगा, और वो चौथा स्टेप में भी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर, कि आप जो है 57 इस्लामिक नेशंस, जो OIC का प्लेटफॉर्म जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो सब मिलके ये तय करें कि भाई हमारे यहाँ इंडिया फॉर एग्जांपल अगर हम कश्मीर का इशू लें, and since the people are being killed for no reason in Kashmir and their places are being taken away by force and they are not given the access to justice system and whatnot, and the independent media outlets are reporting this except from one side of the picture. तो उस नतीजे के अंदर ये 57 इस्लामिक नेशंस फैसला करें कि आपके इंडियंस जितने भी हमारे पास गल्फ या मिडिल ईस्टर्न नेशंस में काम कर रहे हैं, हम उनके वर्क परमिट्स कैंसिल करेंगे, अपनी फोर्स को खुद संभालो, अपने रेमिटेंसेस को खुद संभालो, आपके जितने प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होते हैं और मुस्लिम्स कंज्यूम करते हैं, तो हमें आपके वो प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, आप सब अपने पास रखो, वी डोंट वांट टू ट्रेड विद यू. तो अगर अब ये जो इकोनॉमिक सैंक्शन के तौर पे या पॉलिटिकल थ्रेट के तौर पर ये बोला जाएगा, तो अब इंडिया पे प्रेशर आएगा, बिकॉज 57 कंट्रीज इज अ बिग नंबर. लेकिन अगर हमारा रिस्पॉन्स यूनाइटेड हो रादर देन सेल्फिश, अगर उसके बावजूद इंडिया कहे नहीं, आप 57 इस्लामिक नेशंस हैं मगर आपकी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आप लोग की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे अगर अपनी ट्रेड नीड्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना होगा तो मैं ब्राज़ील से कर लूँगा, USA से कर लूँगा, यूरोपियन यूनियन से कर लूँगा, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, चाइना से, रशिया से, एक्सेट्रा, आई डोंट नीड यू. तो अब उस नतीजे के अंदर आपने सिस्टमेटिकली तमाम प्रेशर लगा दिया, लेकिन वो लोगों को कत्ल करते ही जा रहे हैं. तो अल्लाह ताला फिर कुरान में फरमाते हैं कि एंड व्हाई शुड यू नॉट फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह फॉर दोज, यानी कुरान की आयत का मफहूम है कि those being ill treated are oppressors and they cry is oh Lord rescue ourselves from this town whose people are oppressors, और हमारे अंदर से ऐसे लोग पैदा कीजिए, the ones who will help. तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लड़ाई जायज हो जाती है. अगर आपके घर में कोई टेररिस्ट घुस जाएगा, कोई बर्गलर घुस जाएगा, तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि अमन की आशा आ जाओ, मेरे घर में 50 तोला गोल्ड पड़ा हुआ है, तो यू टेक 20, आई कीप 30, बेगम चाय बनाओ इनके लिए. यू विल नॉट डू दैट. In fact, you will resist him. You will beat him. You will ask him to leave the place. And once you do so, कि अगर आपके लैंड को कोई कैप्चर कर रहा है और आपको लोग टेररिस्ट बोले, तो ये उनका
मसला है, आपका मसला नहीं। यू आर फ्रीडम फाइटर, यू आर डूइंग समथिंग हीरोइक फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर नेशन एंड फॉर योर पीपल। तो इस नतीजे के अंदर आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे फिजिकल फाइटिंग की तरफ अगर लास्ट ऑप्शन जाएंगे। तो ये हमने आपको बता दिया कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट थॉट टू बी कंपल्सरी। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप खुदा न खास्ता सबसे लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस स्वॉर्ड वाले मिलिट्री जिहाद की तरफ चले गए, किताल फी सबीलिल्लाह की तरफ चले गए, फाइटिंग इन द वे ऑफ अल्लाह की तरफ चले गए, तो याद रख लिएगा कि अपने पर्सनल एम्बिशंस या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आप नहीं जा रहे, बदला लेने के लिए आप नहीं जा रहे, बल्कि अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का कानून नाफिज करने के लिए और माशरे से नाइंसाफी हटाने के लिए जा रहे हैं। सो यू कैन टॉक अबाउट दैट। फिर अब उस नतीजे के अंदर यू कैन टॉक अबाउट कि किस तरीके से आप जब किसी जगह फाइटिंग में घुस रहे हैं, बैटल फील्ड के अंदर हैं, तो यू विल ओनली फाइट विद द एनिमी हु इज ट्राइंग टू फाइट यू बैक। आप सिर्फ कॉम्बैटेंट्स से लड़ेंगे। नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी कि सिविलियंस, यानी कि विमेन, यानी कि चिल्ड्रन, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल्स, synagogues, priests, monks, although they are non-Muslims, but they will not be targeted until and unless they are directly a part of the war in terms। तो फिर वो combatants हो गए ना, फिर तो वो नॉन combatants नहीं रहे। वरना अगर वो नॉन combatants हैं तो आप इस आम सिविलियन पॉपुलेशन को हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरा, जिस बंदे से आप लड़ाई कर रहे हैं, if the enemy asks for peace, so you will not just leave it to him, you will escort him to a place of security। नंबर 3, जो prisoner of war आपके पास आएगा, the prisoners of war should not be tortured, उनको आप प्यार से पेश आएंगे। प्रिजनर्स ऑफ वॉर के अलावा और क्या हो, अगर डेड बॉडी कोई आ जाए, जो बंदा मर जाए, तो आप उसकी बॉडी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप उसकी बॉडी को म्यूटिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक कॉज के लिए लड़ रहे थे, आप इंडिविजुअली से बदला निकालने के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो ये सारी बातें हैं जो कि आप it should be related to the geographical location that you are fighting। It is not an open excuse for warfare around the globe। तो आप जिससे लड़े आप उसी से लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी मॉल में बॉम्ब ब्लास्ट कर दें, बोले मैंने अपना बदला ले लिया, बल्कि विल फाइट बैक टू द एनिमी द वे ही वांट्स इट। ही वांट्स इट इन द सेंस कि आप डायरेक्ट एनिमी से ही लड़ेंगे और साइड वालों से नहीं लड़ेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी होगी। और जब एनिमी आपसे कहेगा कि बस अब हमें नहीं लड़ना, तो फिर आप जबरदस्ती इसको आगे जाके मारेंगे नहीं, बल्कि इसको माफ कर देंगे। तो ये रूल्स एंड लिमिटेशंस वाली बात है, ये सारी बातें हमने इस आंसर में की हुई हैं। अब जो अगले 10 मिनट में आपको कराना चाह रहा हूँ ताकि हमारा जिहाद का टॉपिक कवर हो जाए, और वो है 4 पार्ट 20। कितने पार्ट? 20। तो आज हमने 2 पार्ट इस कवर किए। सबसे पहले हमने कवर किया राइट अबाउट द describe the term jihad and say how Muslims can practice jihad in their everyday lives। and number 2, हमने डिस्कस किया कि write about the Prophet's teachings regarding armed warfare jihad and under what circumstances is jihad thought to be compulsory। ये हो गया। अब हम देखेंगे कुछ part B। So let us first look at part B। The first part B is that the Prophet's teachings regarding armed warfare are not relevant today। Do you agree? Give reasons for your answer। तो देखिए बेटा, अगर आप इस सवाल से अग्री कर लेंगे कि हमारे लिए टीचिंग्स आज के लिए इतने रेलेवेंट नहीं हैं, तो इसका मतलब आपको अपना नाम जॉन या कृष्णा रखना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए हुजूर फाइनल प्रॉफिट हैं और इस वजह से उनकी टीचिंग्स हमेशा से रेलेवेंट थी हैं और रहेंगी। मगर ये भी एक रियलिटी है कि जब से WMDs आ गए, WMDs का मतलब होता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो उस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आने के बाद इन टीचिंग्स पे अमल करना मुश्किल लग रहा है बज़ाहिर तौर पे। क्यों मुश्किल लग रहा है? क्योंकि जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब किसी शहर पे जाके गिरता है मॉडर्न वेपन्स के नतीजे में, तो वो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करता है, पूरी स्ट्रीट और नेबरहुड को डिस्ट्रॉय करता है। तो अब जब वो पूरी स्ट्रीट और नेबरहुड को डिस्ट्रॉय करता है, तो उसमें नॉन कॉम्बैटेंट्स ऑफ वॉर और सिविलियंस और फार्म और एनिमल्स और ऑर्चर्ड्स जिसको डिस्ट्रॉय करने का इस्लाम ने मना किया था, वो भी हो रहा होता है। तो फिर हम विन विन सिचुएशन क्या निकालें? तो इस सवाल में लिखा हुआ है कि हम विन विन सिचुएशन ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि रिलीजन फ्रॉम एन एथिकल मॉरल स्टैंड पॉइंट कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप इनोसेंट लोगों को मार दें जस्ट बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस्ड। इनफैक्ट कुरान तो ये कहता है कि अगर आपने किसी इंसान को नाहक कत्ल किया, इट इज एज दो यू हैव किल्ड द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस वजह से यू हैव टू बी वेरी श्योर।
तो आप क्या कर सकते हैं, आप मॉडर्न वेपन्स के अंदर मजीद मॉडर्निटी लाएं, मजीद सोफिस्टिकेटेड लाएं। फॉर एग्जांपल, अब मैं हाइपोथेटिकली बयान कर रहा हूँ, आई डोंट नो द टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स विद रिगार्ड्स टू आर्म्स एंड एम्यूनेशन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, मगर कोई बटरफ्लाई ड्रोन हो। व्हाट इज अ बटरफ्लाई ड्रोन? बटरफ्लाई की शक्ल वाला एक ड्रोन हो जिसके नीचे दो गोलियां लगी हुई हों और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर हो। तो अगर बंदा कोई डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जो किसी शॉपिंग मॉल में पाया जाता है, तो यूएसए ने तो 20 years से ये काम किया है कि कोलैटरल डैमेज इज अ टर्म दैट दे यूज, अ ब्यूटीफुल टर्म, जिससे वो जुल्म को जायज करार देते हैं कि भाई अगर मुझे एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो डिक्लेयर्ड है वो मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पर ड्रोन अटैक करूंगा, बॉम्ब से पूरे मॉल को उड़ा दूंगा। भाई पूरे मॉल को क्यों उड़ाएंगे? क्योंकि भाई अगर उसको पता चल जाता तो वो भाग जाता, तो भले 500 लोग और उनकी फैमिलीज मर जाए, इनोसेंट लोग, क्योंकि एक जो रेडिकल टेररिस्ट था उसको एलिमिनेट करना था। क्यों करना था? क्योंकि वरना वो निकलता और वो हमारे लिए थ्रेट साबित होता और बाद में वो 2 लाख लोगों का कत्ल कर देता। ये सब हाइपोथेसिस है, ये सब मतलब इसके पीछे कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है, मगर उसकी वजह से जो बाकी 500 लोग मरे पूरे बिल्डिंग पे बॉम्ब गिराने के नतीजे में, वो कोलैटरल डैमेज है। मगर आज तो हमारे हालात बहुत खराब हैं, मगर आज से 200 साल बाद अगर हम सुपर पावर भी बन जाएंगे, तो हमें ऐसे वेपन्स डेवलप करने पड़ेंगे कि हम उस मॉल में उस बटरफ्लाई ड्रोन को भेजें और वो उस बंदे का फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के तौर पे फेस रिकग्नाइज करे, उसका हेडशॉट ले और वापस आ जाए। मगर ये हमें इस चीज का एक्सक्यूज नहीं देगा कि जस्ट बिकॉज वी हैड फाउंडेड दैट टेररिस्ट ड्यू टू एनी इंफॉर्मेशन दैट वी किल 500 innocent people and their families। समझ आ रही बात? तो फिर हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स का क्या करें? तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स का ये करेंगे बच्चों कि हम उसको एज अ डेटरेंट, एज अ थ्रेट रखेंगे। एज अ डेटरेंट, एज अ थ्रेट का मतलब ये है कि अगर सामने वाला हम पे यानी उसको, अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो सामने वाला बोलेगा कि भाई पैलेस्टाइन की तरह इसका लैंड चोरी कर दो। लेकिन अगर हम ये बना के रखेंगे तो इट विल कीप द एनिमी फ्रॉम अटैकिंग अस, कि भाई इनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगर हमने अटैक करने का सोचा तो हमें भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो लेकिन फिर आखिरी चीज ये है कि अनलेस कंपेल्ड अदरवाइज, कि अगर कोई सामने से एनिमी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब 5 जगहों पे चला देगा और हम रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे रिलीजन में नहीं है इसलिए हम अटैक नहीं करते, तो वो तो हमें खत्म करके चले जाएगा। तो एन आई फॉर एन आई, मोसेस का लॉ, मूसा अलैहिस्सलाम का लॉ, कि अगर वहां से चमाट आएगा तो हमें भी चमाट मारनी पड़ेगी। बट दैट शुड नॉट बी एन आइडियल सिनेरियो, दैट शुड, यानी जितनी आप अननेसेसरी बिग किलिंग को अवॉइड कर सकते हैं वो आप करेंगे। अगला पार्ट भी, आपके ख्याल में नफ्स का जिहाद क्यों बड़ा जिहाद है? अब इसके अंदर सीआई का आंसर अलग है और स्कॉलर्स हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स। सीआई का आंसर यह है कि भाई नफ्स का जिहाद इसलिए बड़ा है फिजिकल जिहाद के मुकाबले में, जिहाद बिसैफ से मुकाबले में, क्योंकि जो नफ्स का जिहाद है ना, उसके अंदर आप एक अनयूजुअल एनिमी से लड़ रहे। अनयूजुअल एनिमी का मतलब क्या होता है कि उसको हम देख नहीं सकते। और ये बंदा जो है वो 5,000 साल से, 10,000 साल से इंसान को बहका रहा है। जो फिजिकल जिहाद होता है ना, उस फिजिकल जिहाद के अंदर होता ये है कि आप 3 घंटे के लिए लड़ रहे हो या 3 हफ्तों के लिए लड़ रहे हो, बट इट इज फॉर अ सर्टेन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एनिमी विच यू कैन सी, विच यू कैन फाइट। शैतान जो होता है ना, उस शैतानिक डिजायर्स हमें 5,000 साल से, 10,000 साल से, सिंस द इंसेप्शन ऑफ एडम अलैहिस्सलाम, वो हमें तंग किए जा रहा है। तो वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल वे भी है, उसको हम देख भी नहीं सकते, 24 घंटे हमारे साथ होता है। तो जब से हम पैदा लोग होते हैं, जब तक हमारी मौत नहीं आती, वो किसी ना किसी तरीके से हमें तंग करने की और सेटेनिक सजेशन हमारे दिमाग में पोर करने की कोशिश करता है। और उस नतीजे के अंदर में अ, उससे लड़ना मुश्किल है, इसलिए नफ्स का जिहाद बड़ा है। दिस इज व्हाट द सीआई सेज। मगर पहली दफा जब ये सीआई ने आंसर भेजा, क्वेश्चन भेजा 2013 में, तो द इस्लामिया टीचर्स रोट इन ईमेल कि दिस इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। या तो आप इसको इस चॉइस पे छोड़ दें कि व्हाट जिहाद डू यू थिंक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाई, या इज मोर ग्रेटर एंड वाई। तो क्योंकि स्कॉलर्स का ये कहना है कि जो फिजिकल जिहाद है, जिहाद बाय द स्वॉर्ड, वो सबसे बड़ा जिहाद है। क्यों? तो मैंने ऑन दी अदर हैंड से उसकी रीजनिंग दी हुई है, जो आंसर में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। क्योंकि जो फिजिकल जिहाद होता है, उस फिजिकल जिहाद के अंदर सबसे बड़ा नफ्स का जिहाद एम्बेडेड होता है।
इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि हम ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेट की आर्मी है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आर्मी फॉर दैट मैटर, और टर्किश आर्मी फॉर दैट मैटर, और मलेशियन आर्मी फॉर दैट मैटर। तो अब उस नतीजे के अंदर अगर पाकिस्तान आर्मी का कोई सोल्जर अपनी बॉर्डर पे खड़ा है ताकि वो टेररिस्ट को भगा सके, और पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ पॉपुलेशन सुकून से सो सके और उनके बच्चे यतीम ना हो, उन पे अटैक ना हो, तो वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है। आप मैं अपनी नज़रों को नीचे रखूं या 5 टाइम नमाज पढ़ूं, ये मेरे लिए आसान है बनिस्बत कि मैं बोलूं कि मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए राजी हूँ। मेरी 3 बेटियां भले यतीम हो जाएं, मेरी वाइफ भले बेवा हो जाए, मगर 25 करोड़ आवाम के घरों पे वालिद साहब का साया रहना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आई विल सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर द सेक ऑफ इस्लाम एंड फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान एंड एक्सेट्रा। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस कुर्बानी को आप अंडरस्कोर नहीं कर सकते। तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो जिहाद भी सैफ होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा नफ्स का जिहाद छुपा हुआ होता है, क्योंकि जिंदगी को थ्रो अप करना आसान नहीं है, कपड़े को कुर्बान करना आसान है, और दीगर छोटी छोटी खाने को कुर्बान करना आसान है ह्यूमैनिटी के लिए एक्सेट्रा। पैसों को कुर्बान करना निस्बतन आसान है, मगर अपनी पूरी जान सैक्रिफाइस कर देना फॉर द सेक ऑफ एवरीवन एंड फॉर द सेक ऑफ गॉड एंड इट्स क्रिएशन, ये इस आसान नहीं है। तो ये लॉजिक है ऑन द अदर हैंड की। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज मैंने आपके सामने पेश कर दी। आखिरी 2 पार्ट 20 करेंगे। आई नो इट्स 9:30, मगर इससे हमारा जिहाद का टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो लेट्स कंप्लीट इट लाइक दैट ओनली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जिहाद? आप जो है जिहाद के टर्म से क्या अंडरस्टैंड करते हो? तो बेटा अगर आपका पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो सेम आंसर दे रहा हो, तो उसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ा है। मगर ये वाला पार्ट बी है ना, इसके साथ पार्ट ए कोई एंजल्स पे आ गया होगा, प्रॉफिट्स पे आ गया होगा, तो ये एक्चुअली ये वाला पार्ट भी इनडायरेक्टली इज अ साइनॉप्सिस ऑफ अ पार्ट ए, इज अ समरी ऑफ द पार्ट ए। ओके, मगर अगर जिहाद पे ही पार्ट ए और बी आएगा तो फिर दोनों के आंसर के पॉइंट्स अलग होंगे, ये आप याद रखिएगा। तो अब उस नतीजे के अंदर आपके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म जिहाद? तो आप ये बता सकते हैं कि भाई यूजुअली कुछ लोग ये समझते थे कि जिहाद का मतलब होता है ओनली फिजिकल वॉर, होली वॉर, फाइटिंग, गन्स, टैंक्स एंड व्हाट नॉट। मगर एक्चुअली जिहाद इज मच मोर देन दैट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इफ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर ओन इविल इंटेंशंस, अपने अंदर की गंदगी को साफ कर रहे हैं, अपने आसपास की गंदगी को साफ कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी की गंदगी को साफ कर रहे हैं, सोशल इवल्स को एड्रेस कर रहे हैं, ग्रीड, एंगर, लेजीनेस, जो अपने अंदर की गंदगी उसको साफ कर रहे हैं। जिहाद इज सच ए ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट इट मेक्स it takes out the best potential in a human, in a Muslim, and makes him a better version of himself, and tries to remove evil from the society, and promotes peace, and promotes brotherhood, promotes loyalty, decreases crime rate. And that is why jihad is supposed to be a concept which a Muslim should love rather than being apologetic about it. तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई ओके। लास्ट पार्ट बी फॉर द डे। आपके ख्याल में अगर आज मुसलमान प्रैक्टिस करेंगे जिहाद, तो उस प्रैक्टिस करने के नतीजे में सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो यहाँ पर कुछ डब्बाज लिखे हुए, लेट्स टॉक अबाउट दिस डब्बाज। नंबर 1, जिहाद को प्रैक्टिस करने के नतीजे में मुसलमान अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। जब मुसलमान अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो वो बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स बन जाएंगे। वो अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, लालची नहीं होंगे, ग्रीडी नहीं होंगे, एंगर नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, एरोगेंस नहीं होगा, जिससे वो और काइंड और पीसफुल हो जाएंगे। जब वो काइंड और पीसफुल होंगे तो उस नतीजे के अंदर वो अपने फैमिली को अच्छा ट्रीट करेंगे, अपने नेबरहुड को अच्छा ट्रीट करेंगे, अपने सिटी को अच्छा ट्रीट करेंगे, और उससे पूरी सोसाइटी पीसफुल और बेटर बन जाएगी। जब हम जिहाद बिल लिसान इस्तेमाल करके लोगों को दावत तबलीग करेंगे, दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो गया, थ्रू दावा इनवाइटिंग अदर्स टू इस्लाम, Muslims can share their faith in a peaceful way, in a systematic way, in a logical way। और जबरदस्ती बंदूक के जोर पे तो किसी को इस्लाम कबूल कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सूरह आल इमरान नहीं, सूरह बकरा आयत नंबर 185 में कहा जाता है, let there be no compulsion in religion, truth stands out clear for error, so let there be no compulsion in religion।
तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर सकते हैं और दूसरे फेथ्स के लोगों को इस्लाम के करीब ला सकते हैं एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर मैं जिहाद बिल माल लगा रहा हूँ, तीसरी बात इसमें लिखी है 3 एग्जाम्पल्स के जरिए, तो जिहाद बिल माल लगाने के बेसिस पे मैं वल्नरेबल लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं पुअर की हेल्प कर सकता हूँ, मैं विडोज की, और उससे मुआशरे में क्राइम रेट भी कम होगा, पीस भी होगी, ब्रदरहुड भी होगा, एंड दैट इज हाउ द सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। For further videos and updates, do not forget to like, subscribe, and share.